Hello students, welcome to Sacred Hearts online computer class. This is your computer teacher Himani Messi, and today we are going to continue our 8th chapter Introduction to HTML. In this class we are going to study about the basic terms used in HTML. The HTML code is made up of tags, attributes and elements. All these elements function together to recognize various parts of a document to instruct the web browser how to display these parts. HTML कोडिंग, कोई भी HTML का जो प्रोग्राम होता है, जो कोडिंग होती है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक उसमें टैग्स यूज़ होते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड एलिमेंट्स, ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों के फंक्शन को यूज़ करके हम एक वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं। सो नाउ फर्स्ट थिंग्स आर द टैग्स. A web page is designed by using various elements. Tags are used to describe how a web page should be displayed. They play the major role of accommodating components in a document such as headings, paragraph, horizontal line, etc. HTML contains a large number of tags and each tag is used to perform a specific task. So web page जो हमारा डिज़ाइन होता है उसमें बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें सबसे मेजर पार्ट होता है टैग्स का. ये जो टैग्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं या ये इन्फॉर्म करते हैं कि कोई भी वेब पेज वेब ब्राउज़र में किस तरह से डिस्प्ले होगा. कोई भी वेब पेज पे जो पैराग्राफ, हेडिंग, हॉरिजॉन्टल लाइन या जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं उस ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली कैसे डिस्प्ले होना है वेब ब्राउज़र पे, ये टैग्स की ही हेल्प से हम सेट करते हैं. HTML में हमारे पास बहुत ढेर सारे टैग्स हैं और हर टैग का अपना एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक टास्क होता है. एन HTML टैग कंसिस्ट ऑफ अ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट, अ टैग नेम एंड अ राइट एंगल ब्रैकेट. For example, the tag used to underline the text is written as the left angle bracket, U and right angle bracket. So this is the method how to use a tag. Left angle bracket, then the tag name and the right angle bracket. और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. Remember that when you are writing tags, there should not be any extra spaces. If the browser finds a space, it does not understand the tag and therefore display the incorrect output. तो अगर आप इसमें गलत यूज़ कर लेते हैं या आप इसमें स्पेस दे देते हैं तो ब्राउज़र इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा टैग को और वो इनकरेक्ट आपका आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा. नाउ नेक्स्ट इज़ HTML attributes. Attributes can be defined as those extra bits of information that can be seen inside tags. They provide additional information about a tag such as alignment, font color, size of the text, etc. Attributes are written in a tag after the tag name. Each attribute comes with a name and a value. The value of the attribute is specified after the name of the attribute and to the equals to sign. The value of the attribute may or may not be specified within the quotes. For example, font align is equals to left, size is equals to 20. Align the text to the left with the point size 20. In this example, align and size are the attribute and left and 20 are the values of the attribute. Now, attributes are the part of the tags. Attributes जो होते हैं वो tags के साथ tags एंगल ब्रैकेट्स के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं. ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ये हर टैग के संग अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ किए जाते हैं. इन एट्रीब्यूट्स में डिपेंड करता है कि ये एट्रीब्यूट्स या तो ये डबल कोट्स में स्पेसिफाई किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे. हर एट्रीब्यूट के संग उनकी कुछ वैल्यू होती है. जैसे एट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू यूज़ होगी. कोई भी एट्रीब्यूट ऐसा नहीं होता है जिसे एम्प्टी यूज़ किया जाए. हर एट्रीब्यूट अपनी वैल्यू के साथ आता है और हर एट्रीब्यूट HTML टैग के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं. तो यहाँ पे जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है फॉन्ट अलाइन लेफ़्ट साइज़ 20. तो यहाँ पे हमने जो फॉन्ट है उसका अलाइनमेंट हमने लेफ़्ट और उसका साइज़ जो है वो 20 पॉइंट्स की वैल्यू सेट की है. तो अलाइन एंड साइज़ आर द एट्रीब्यूट्स एंड द लेफ़्ट एंड 20 यहाँ पे क्या है उन एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है. द नेक्स्ट आर द HTML एलिमेंट्स. An HTML element is a basic component that is used for creating a web page. It is used to mention how a browser should display the information in the web page. An element consists of a starting tag and its attributes and contain and the ending tag. The last tag, also called the closing tag, is preceded with a forward slash.
नाउ HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स, ये वेब पेज को क्रिएट करने के सबसे बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। और बेसिकली यही एलिमेंट्स किसी वेब ब्राउज़र को डिफ़ाइन करते हैं कि जो वेब पेज है वो किसी भी वेब ब्राउज़र पे किस तरह से डिस्प्ले होना है। हर एलिमेंट जो होता है उसके संग एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग एट्रीब्यूट होता है। जो मीन्स स्टार्टिंग टैग है तो उसके संग उसका एंडिंग टैग भी होगा। जो लास्ट टैग होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। मीन्स स्टार्टिंग होती है और फिर क्लोजिंग भी होती है उस टैग की, और ये यूजुअली फॉरवर्ड स्लैश के संग यूज़ किया जाता है। नाउ देयर आर इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस ऑफ HTML टैग्स एंड एलिमेंट दैट आर यूज्ड फॉर फॉर्म्स, images and list. Everything displayed on a web page requires the use of a tag. The HTML elements can be recognized as container element and empty element. Now HTML में कई तरह के एलिमेंट्स होते हैं और बहुत ढेर सारी इसमें लिस्ट है, जिसमें से कि फॉर्म्स, इमेजेस और लिस्ट एंड आपके बहुत सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं। ना ये जो टैग्स होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं HTML, ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। वन इज़ द कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट और एम्प्टी, दो तरह के एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। This is all for today's class. We'll continue this topic in our next class. Till then, stay safe and goodbye.